کا استقبال ہے آج کے ہمارے اس پروگرام میں۔ معزز ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بحث اور ڈیبیٹ ہوگی اس عنوان پر، اسلام بطور شمشیر پھیلا یا بطور اخلاق، اور کیا قرآن آتنکواد اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، اولاً میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں جناب وشنو گپتا صاحب، جو ہندو سینا کے پریزیڈنٹ ہیں اور جنہوں نے ہوم منسٹر کے چیف سیکریٹری کے سامنے گزارش رکھی اور خط لکھا کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ اور انہوں نے اس خط میں ناروے کی اسلام دشمن تنظیم سیان کے سربراہ لارسن تھومر کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے محض قرآن کریم کو اس وجہ سے نظر آتش کر دیا کہ وہ دہشت گردی کا منشور ہے، اور چونکہ قرآن نان مسلم کو مارنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو مارنے کی اسکیم بتاتا ہے۔ انہی کے ساتھ ہمارے چند معزز مہمان اور ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ انہی کے ساتھ یہ ہے جناب رام پال صاحب، یہ بھی ملک کے معروف صحافی ہیں، بین المذاہب بحثوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور ملک کی معروف یونیورسٹی بنارس ہندو یونیورسٹی میں مذہبیات کے پروفیسر ہیں، مذاہب کے تقابلی مطالعے کے میدان میں بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہیں جناب منیش ورما صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں پائے جانے والی ادیان و مذاہب پر گہری نظر رکھتے ہیں، مذاہب کے تقابلی مطالعے کے میدان کے بھی ماہر ہیں، اور ہندی اخبارات میں بھی اسی حوالے سے ان کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں جنہیں ملک کے لاکھوں افراد پڑھتے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود یہ ہمارے اس منچ پر تشریف لائے۔ اور یہ ہے پنڈت گوتم صاحب، ان سے تو آپ سبھی واقف ہیں، یہ ہمارے ملک کے پوتر شہر ہریدوار سے تعلق رکھتے ہیں، ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی برابر شریک رہتے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کے حوالے سے یہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے شردھاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ابھینندن کرتے ہیں۔ اور یہ ہے جناب شری رویش کمار صاحب، یہ بھی ملک کے معروف صحافی ہیں، بین المذاہب بحثوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور درجنوں کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں، یہ بھی آپ یہاں اپستھت ہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری ڈیبیٹ سنجیدہ ماحول میں ہوگی۔ ناظرین، میرے دائیں جانب بھی چند معزز مہمان اور ہیں، یہ ہیں جناب مولانا محمد منصور صاحب، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے میدان میں نمایاں افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہی کے ساتھ ہیں جناب مولانا محمد ادریس صاحب، جو کئی دینی، ملی، سماجی تنظیموں کے سربراہ ہیں اور نئی نسل کے اندر اسلام کے تئیں اعتماد پیدا کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ہے جناب ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، یہ بھی ملک کے معروف صحافی ہیں، پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اسلام کا خاصا مطالعہ رکھتے ہیں اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا مدلل علمی کاملی جواب دیتے ہیں۔ اور یہ ہے جناب پروفیسر محمد مبین صاحب، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، علمی و دعوتی مضامین تحریر کرتے رہتے ہیں اور ملک اور بیرون ملک میں بحیثیت گیسٹ لیکچرار ہمیشہ مدعو کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے جناب اسکالر شہباز صاحب، ملک کی سطح پر ایک آزاد اسکالر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور ہندی و انگریزی کے علاوہ عربی زبان میں بھی اظہار خیال پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم ان سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے اس اسٹیج پر آسمان علم کے چنندہ ستارے موجود ہیں۔ ہم ان سبھی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، تو چلیے اب انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم، اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں جناب وشنو گپتا صاحب سے۔ جی جناب وشنو گپتا صاحب، آپ نے جو ہوم منسٹر کے چیف سیکریٹری کو خط لکھا اور اس میں قرآن پر پابندی کی بات کہی اور کہا کہ قرآن نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، اس پر پابندی لگانی چاہیے، تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جناب، ہم نے جو لکھا ہے وہ ہم نے قرآن کے آیتوں کو دیکھ کر لکھا ہے اور ہم نے صحیح لکھا ہے۔ قرآن میں انگریز جگہ جگہوں کا تذکرہ ہے اور دوسروں کے ساتھ جڑ کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ ہم اسے پوری مانوتا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور ہم مانوتا کی حفاظت اور سرکشا چاہتے ہیں۔ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے کہ ہندوؤں کو ختم کر دو، ان کو قتل کر دو؟ تو ہندو کا لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تو اعتراض ہی بنیادی طور پر۔ جناب، ہندو سے کرتے ہیں نان مسلم، لفظ ہندو تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ انگریز جگہ جگہوں کا تذکرہ ہے اور دوسروں کے ساتھ جنگ کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔
जंग का तज़किरा कुरान के अंदर नहीं बल्कि जंग का तज़किरा तो वेदों के अंदर भी मौजूद है और इसके अलावा तमाम मजहबी किताबों में जंग का तज़किरा मौजूद है। तो फिर इनको जुल्म आतंक और दहशतगर्दी फैलाने वाला क्यों नहीं कहा जाता? आपको इन किताबों से खतरा क्यों नहीं है? इन पर भी पेड़ लगने का मुतालबा किया जाना चाहिए और इन पर भी पेड़ लगना चाहिए। जनाब वेदों में जंग का तज़किरा है लेकिन गैर धर्म के लोगों के साथ नहीं है, वहाँ केवल शत्रु है। उस समय तो कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। ये वेद तो मोहम्मद से 2000 साल पहले लिखे हुए हैं। उस समय तो केवल सनातन धर्म था जनाब। अरे जनाब उस वक्त जो जंगें हुई ये बताइए उस वक्त किसके साथ ये जंगें हुई थी? उस समय जो जंग हुई वो आपस में हुई थी, किसी दूसरे धर्म के लोगों से नहीं हुई। जी पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मौलाना साहब, मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब आप बताइए, जवाब दीजिए। क्या बात कह रहे हो? वेदों के दौर में अलग-अलग माना जाते थे दूसरे। जी क्या जवाब है पंडित जी आपके पास? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हकीकत है आप बताइए। इसे छोड़िए जनाब, ये तो सुनी बातें हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। सुनी बातें नहीं है बल्कि वेदों के अंदर से सबूत मौजूद है। और देखिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, मनुष्य में तो भाई और देखिए। जी बोलिए। राजाओं के लिए जंग से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और राजाओं की जिम्मेदारी है कि इसमें हासिल शुदा दौलत को बरामदों के सपोर्ट करें और अपनी रियायत को बेखौफ कर दे। और आपकी की किताब अथर्ववेद के अंदर श्लोक नंबर 80, 7 और 50 क्या कहता है? देखिए, अमल मेरे दाएं हाथ में, फतेह मेरे बाएं हाथ में। मैं जमीन फतेह करने वाला, घोड़े जीतने वाला, सोना चांदी जीतने वाला हूँ। और आपकी की मशहूर किताब मनुस्मृति के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मैं जंग में फरार करने वाले के परलोक में सभी अजर साहब उसके आका को हासिल होता है। रथ, घोड़ा, दौलत, अनाज, मवेशी, औरत, नमक, धात की अशिया जिस चीज को लाता है उसी का होता है। तो जनाब ये देखिए कौम को जंग के लिए बाहर नहीं गया है। और यूं तो हिंदू मजहब का कोई मरकजी और असासी अकीदा ही नहीं कि जिस पर बहस की जाए। यही वजह है कि आज तक किसी ने हिंदू मजहब की कोई ऐसी जामे तारीफ नहीं की कि जिस पर तमाम का इत्तेफाक हो सके। वैसे 3 मशहूर किताबें हैं, चारों वेद, गीता, मनुस्मृति। देखिए वेद क्या कहते हैं इस बारे में कि हर बद को कत्ल कर दो और जो हमें खुफिया तरीके से तकलीफ पहुंचे उसे रिहा कर दे। हे इंद्र तू हमारे पास खूबसूरत घोड़े और गाय लेकर आ, हजारों की तादाद में है बड़े दौलतमंद। और जनाब ये भी सुनिए, आपकी इस ऋग्वेद के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ताकतवर इंद्र राजा ने अपने हसीन रंग वाले दस्तों के साथ मिलकर जमीन को फतह किया, सूरज की रोशनी और पानी को फतह किया। और जनाब ये ऋग्वेद का टेक्स्ट तो आगे खोल देने वाला है, जरा गौर सुनिए कि इंद्र जब मैदान जंग गर्म हो तो हमारे दुश्मनों को और फानी लोगों को जो हमारे हिजूम करते हैं हलाक कर दे और हमारे फानी हरीफों के हथियारों को तोड़ दे, उन्हें आसानी के साथ मगलूब होने वाला बना दे और हमारे पास अजीम शोहरत और दौलत हमारे हाथ आए। और जनाब यहाँ तक कहा गया उसके अंदर कि हमारे बहादुरों को बकसरत सामाए खुराक और बहादुर औलाद हासिल हो। और जनाब इस वेद को भी देख लीजिए, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि किस तरह माल लूटने की तरकीब दी गई और अपने दुश्मनों पर फतह पाने के लिए उभारा गया। कि अग्नि हमको वसी मकान, आराम और आशाइश बख्शने और हमारे दुश्मनों को हमारे सामने मारते भगाती फिरे और हमारे गनीमत की जंग में वो हमारे गनीमत हासिल करे, वो अपनी फातिहाना पेशकदमी में दुश्मन को जेर करे। बल्कि जनाब सुनिए, यहाँ तक कहा गया कि जो तुम्हें नफरत की निगाह से देखे उसे जलाकर राख कर दे। सुनिए जनाब ये खतरनाक अल्फाज यजुर्वेद की बात ये है कि जो शख्स हमको नुकसान पहुंचाने की फिक्र करता है या हम पर तोहमत लगाए या हमें ईजा पहुंचाए उसे जलाकर राख कर दे। तो जनाब कुरान से पहले पाबंदी तो इन वेदों पर लगनी चाहिए, हुकूमत को इन पर बैन लगाना चाहिए कि इनके मानने वाले हर जगह जंग करना, माल लूटना, माल दौलत हासिल करना और अपने से नफरत करने वालों को जलाकर राख कर देना चाहते हैं। और जनाब सामवेद की इबारत मुलाहिजा देखिए, इसके अंदर क्या कहा गया कि देवता के महबूब अपने मसरत बख्श रस के साथ अपने बदजात पापियों को कत्ल करते हुए दुश्मनों को उनकी नफरत समेत हलाक कर दे, रोज बरोज जुल्म करते हुए और माल दौलत हासिल करते हुए। और जनाब अथर्ववेद की इबारत मुलाहिजा हो कि मनु तू ताकतवर से ताकतवर होकर इधर आ और अपने गजब से हमारे दुश्मनों को हलाक कर दे और हमारे पास हर किस्म की माल दौलत के खजाने ला। और आगे इसी वेद के अंदर ये भी कहा गया कि इन लोगों को बैल की खालों में सीलो, इनके अंदर हिरनी के
बुजदिली पैदा कर दो ताकि दुश्मन भाग जाए और इनके मवेशी हमारे पास आ जाए। तो जनाब जो एतराज आप इस्लाम पर कर रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी पर उभारता है, इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, तो जनाब जरा गीता की इस टेक्स्ट को पढ़िए और इंसाफ का चश्मा लगाकर देखिए इसके अंदर क्या कहा गया और जवाब दीजिए कि अर्जुन ये जंग सुरंग का एक दरवाजा है जो तुम्हारे लिए खुद ब खुद खुल गया है। ऐसा मौका खुशकिस्मत क्षत्रियों को ही मिला करता है। अगर तू अपने मजहब की पैरवी करके जंग न करेगा तो तू अपने धर्म से बगावत करके और अपनी शोहरत को बर्बाद करके पाप जमा करने वाले होगा। तो जनाब अब आप खुद ही फैसला करें कि आप अपने दायरे में कितने सही है और हकीकत क्या है और इस्लाम पर आपके जो एतराज़ात है वो किस कदर लचर और बेजा है, जबकि आपके मजहबों में और आपके वेदों के अंदर तो कुरान से भी ज्यादा जंग का तज़किरा आया है। तो जनाब दूसरों पर एतराज़ करने से पहले अपने धर्म का और अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और स्टडी और मुताला कीजिए, शायद कि आपके तासुब की रंग उतर जाए और आपके इस्लाम पर जो एतराज़ात है वो खत्म हो जाए। अरे वेदों को छोड़ो जनाब, मौजूदा हक़ाइक़ पर बात कीजिए और मुसलमानों की तारीख पर नजर डालें। जनाब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जंग का तज़किरा वेदों में हो तो ठीक है और ये बात कुरान में हो तो गलत। क्या बात है आपकी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। आप बताइए क्या बात है? आप ही बताते हैं कि आप ही ने तो कुरान पर पाबंदी की बात कही है कि हिंदुओं को मार दो और कत्ल कर दो, आप ही ने कही है बात, तो बताइए कहाँ है और किस जगह? जनाब कुरान में नहीं हदीस में तो है ना। आपने हदीस पर पाबंदी की तो बात ही नहीं की, आपने तो कुरान पर पाबंदी की बात की है। चलिए आप बताइए कुरान में 5 नमाजें कहाँ हैं? बताइए कहाँ है कुरान में 5 नमाजें? जिस प्रकार आप कुरान में जा रहे हैं इसी प्रकार हम जा रहे हैं। हदीस कुरान के बाद ही तो है, अलग से नहीं है जनाब। अब मुझे बताइए कि कुरान और हदीस में किस जगह लिखा है कि एक आम मुस्लिम सिटीजन एक आम मुस्लिम सिटीजन को बगैर कुछ कहे और के मार सकता है? किसी आयत हदीस में हो तो दिखाइए। चलिए आपकी बात मान ली, लेकिन फिर कश्मीर से इंडिया को भगाने का क्या कारण था? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? गुप्ता साहब आप टॉपिक से हट रहे हैं, हम टॉपिक से हट रहे हैं। आप बात इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? आप बात घुमा रहे हैं, हमारा टॉपिक का नहीं सर, टॉपिक का बात जारी रखिए, अपनी बात जारी रखिए। जनाब मौलाना साहब, ये मज़हब इस्लाम की मुख्य धारा है कि हिंदुओं को मारो और कत्ल करो, वरना हिंदुओं को इतनी बड़ी तादाद में वहां से निकालने का क्या मतलब है? और ये भी एक हकीकत है कि मुसलमान जहाँ भी तादाद में बढ़ गए या 20% हो गए, वहाँ उन्होंने नॉन मुस्लिम की हत्या की और उनके साथ बदला किया। आप हिस्ट्री पढ़िए और देखिए, इससे भी और अपनी कुरान की आयतों से भी यही पता चलता है कि ये मज़हब इस्लाम की मुख्य धारा है। अब आप क्या बोले जा रहे हैं? अगर ये मजहब इस्लाम की मुख्य धारा है तो मजहब इस्लाम की किताबों में होगी ना। सर आपसे कितना बताया कुरान में है नहीं कि हिंदुओं को मारो और कत्ल करो अगर वो इस्लाम कबूल न करे। इसी वजह से आपने जिहाद क्या है, जिहाद और इस्लाम को तलवार के तौर पर फेरा है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो जगह जगह ही पढ़ते हैं और फिर मुसलमानों की भी देख लीजिए, अपने प्रोफेट की सीरत को उठाकर देख लीजिए। जब वो मक्के में थे तो थोड़े थे, ताकत उनके पास नहीं थी, लेकिन जब वो मदीने में आ गए तो उन्होंने अपने मानने वालों को जिहाद पर उकसाया। और अब आप भी की हिस्ट्री का मुसाद इस्लाम की पहली जंग हुई, वो भी एक तिजारती कब्जे को लूटने के लिए हुई, इसका भी जिक्र कुरान में है। और इसके अलावा जितनी भी जंगें हुई उन तमाम का जिक्र कुरान में है। अब आप भी बताइए कि कुरान में नहीं है क्या? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि इस्लाम और जिहाद, इस्लाम और तलवार, इस्लाम और आतंक टेररिज्म सब एक है। देखिए जनाब, जज्बात और देश में आकर बात मत कीजिए, दलाइल पेश कीजिए। अगर दलाइल आपके पास है तो जनाब दलील पेश कीजिए। जनता की अदालत लगी हुई है, सबको मालूम होगा कहाँ है कुरान में, किस जगह है, पेश कीजिए दलील। सर मैं दिखाता हूँ, ये जो कुरान में है मैं दिखाता हूँ। जी दिखाइए, बोलिए। आपकी पवित्र पुस्तक कुरान में एक सूरत है सूरत हुआ। इस सूरत हुआ की आयत नंबर 5 में कहा गया है फैदन सलकल रसूलुल्लाह फक्तुल मुशरिकीन इज़ वजदतुमूहुम। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि जब मुहर्रम महीने गुजर जाए तो शिरक करने वालों यानी हिंदुओं या नॉन मुस्लिम को जहाँ पाओ मारो, गिरफ्तार करो, घेरो और हर जगह उनकी घात में बैठ जाओ। फिर अगर वो तुम्हारे धर्म को मान ले, तुम्हारी तरह नमाज पढ़ने लगे, ज़कात देने लगे तो उनको छोड़ दो। तो बताइए क्या तलवार की जोर पर इस्लाम फैलाना नहीं है? इसी तरह दूसरी सूरत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 61 में कहा गया है ऐ नमाज़ की फू की रू को तिलो तक वो फटकारे हुए लोग जहाँ कहीं मिलेंगे
علاوہ ایک صورت اور ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہندوؤں کو پکڑو اور ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کے علاوہ ایک مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے محمد نون مسلموں سے قتل کیجئے اور ان کو جنگ پر ابھاریے۔ یا ایھا النبی حذر المؤمنین عن القتال۔ یہ جناب اسی پر بس نہیں بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا گیا ہے کہ تمہاری جنگ کی تربیت اتنی اچھی ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ایک جہادی مسلمان 10 نون مسلم سے بھاری ہو جائے۔ تو آپ خود ہی بتائیے کیا تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانا نہیں تو کیا ہے؟ بتائیے۔ شرما جی، ابھی پنڈت جی نے کچھ آیتوں کے ٹکڑے پیش کیے اور ان کے ذریعے سے اسلام پر الزام تراشی کی ہے اور اسلام کو فسادی اور دہشت گرد اور سفاک ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے جنتا تک بھی یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی کے یہ اعتراضات لچل اور بے بنیاد ہیں۔ میں یکے بعد دیگر اور ون بائی ون پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے ان اعتراضات کا مفصل اور مدلل جواب پیش کر رہا۔ پنڈت جی، آپ نے 4 آیتوں پر اعتراض کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی آیت سورۃ توبہ کی آیت ہے، وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو تم جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھاٹ کی جگہ میں ان کی تاک میں بیٹھ جاؤ۔ بس اگر وہ توبہ کر لے اور نماز ادا کرنے لگے اور زکات دینے لگے تو تم ان کی جان چھوڑ دو اور ان کا راستہ چھوڑ دو، اور یقیناً اللہ رب العزت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے تحت جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ظاہر ہے کہ مکے میں اور مدینہ جانے کے بعد بھی کفار مکہ اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ہر لمحے آپ کو ستاتے رہتے تھے اور نئی نئی پلالی بناتے رہتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکے کے لیے سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن منافقوں نے اس کی خبر قریش کو پہنچا دی اور کفار مکہ اور قریش ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کا موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور راستے میں تاک لگا کر بیٹھ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پاتے ہی راستے کو بدل دیا اور مکے کے قریب پہنچ کر حدیبیہ نامی کنویں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ قریش کو جب یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے پاس مکے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے حدیبیہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈال لیا ہے، تو اپنے کچھ آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، مگر وہ سب حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو غلطی کا احساس دلا کر معاف کر دیا۔ اب لڑائی جھگڑے اور خون خرابے کو ٹالنے کے لیے حضرت عثمان کو قریش کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا۔ اب حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر یہ پہنچی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمان دیش میں آ گئے اور فوراً جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ ادھر قریش بھی جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان جنگ کی تیاری میں ہو اور جنگ بالکل متعین ہے تو قریش نے مصالحت کے لیے سہیل ابن عمرو کو بھیجا حدیبیہ نامی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سہیل ابن عمرو آئے اور آ کر کہا کہ حضرت عثمان کو قید کیا گیا ہے، قتل نہیں کیا گیا، اور حضرت عثمان کو قید سے آزاد کرانے کے لیے اور جنگ کو ٹالنے کے لیے انہوں نے چند شرائط پیش کی۔ وہ چند شرائط یہ ہیں، غور سے سنیے۔
नंबर 1, इस साल आप बगैर हज किए वापस चले जाएं, अगले साल आए और सिर्फ 3 दिन के बाद वापस चले जाएं। नंबर 2, कोई भी कबीला अपनी मर्जी से कुरैश का या मुसलमानों का हिमायती बन सकता है। नंबर 3, इन शर्तों को मानने के बाद मुसलमान और कुरैश न एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे और न ही एक दूसरे के हिमायती और सहयोगी कबीले पर हमला करेंगे। ये मुआहिदा 10 साल के लिए हुआ जो सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये शराइत एक तरफा और जानिबदाराना थी, इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शराइत को मंजूर कर लिया। मगर सुलह होने के 2 ही साल बाद बनु बकर नामी कबीला जो कुरैश का हिमायती और सहयोगी था, उसने मुसलमानों के हिमायती और सहयोगी हलीफ कबीले पर उसका नाम बनु खुज़ा हमला बोल दिया। इस हमले में कुरैश भी उसके साथ पेश थे। अब बनु खुज़ा भागकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और इस हमले की खबर पहुंचा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने झुककर सुलह की थी, किस लिए? सिर्फ अमन और अमान के कयाम के लिए। मगर कुरैश ने इसके बावजूद भी इस सुलह को तोड़ दिया और धोखा दिया। तो अब जब एक जरूरत थी, क्योंकि कुरैश ने मुआहिदा तोड़कर हमला किया था, खुद हमला किया था, तो अब इस हमले का जवाब देना मुसलमानों पर जरूरी था। और इसी जरूरत के पेश नजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा की आयत फैज़न सलाहल अशहुरुल हुरुम नाज़िल की। इससे पहले चौथी आयत है, इन्नल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। कि मगर वो मुशरिकीन जिनसे आपने अहद कर रखा है, अगर उन्होंने तुम्हारे दीन में कोई कसूर नहीं किया, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो तुम्हें मना नहीं करता, तुम्हें तो उनके साथ तुम्हें जंग करने के लिए नहीं कहा गया। इससे साफ जाहिर है कि जो जंग का ऐलान था वो मुशरिकों के खिलाफ था, उन ताक़तों के खिलाफ था कि जिन्होंने मुआहिदा तोड़कर अमन और अमान की धज्जियां उड़ाई थी, उन मुशरिकों के खिलाफ था, ना कि तमाम मुशरिकों और तमाम काफिरों के खिलाफ। और ये जंग का ऐलान खुद की हिफाजत के लिए था, मजहब की हिफाजत के लिए था और गैर मुनसिफ और फसादियों की तबाही से बचाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए और अपनी हिफाजत के लिए जंग पर खुद को उकसाने और फौजियों को उकसाने पर तमाम मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं। शर्मा जी, क्या लोग नहीं जानते कि फसादियों और जालिमों की तबाही के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पैगाम दिया था जो गीता में है? क्या ये पैगाम लड़ाई झगड़ा कराने वाला और फसाद फैलाने वाला है? अगर नहीं है तो फिर कुरान के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? और फिर ये सूरत उस वक्त मक्के के जालिम कुरैश के मुतालिक नाज़िल हुई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फिर इसे आज के हवालाजात में क्यों लिया जा रहा है और हिंदुओं के लिए क्यों लिया जा रहा है? क्या हिंदुओं और दीगर गैर मुस्लिमों को उकसाने और उनके मन में मुसलमानों के तय और मुसलमानों के लिए नफरत भरने और इस्लाम को बदनाम करने की घिनौनी साजिश नहीं है? यह आपके आयत के एतराज का जवाब हुआ। अब दूसरी आयत जिस पर आपने एतराज जताया है वो है ऐनमा तुक़ितू उख़्ज़ू व क़ुतिलू तक़तीला। तो पंडित जी, इस आयत का सही मतलब उस वक्त तक समझा ही नहीं जा सकता जब तक कि आप इससे पहली वाली आयत को इसके साथ मिलाकर उस पर गौर न कर ले। इससे पहली आयत है लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ वल मुर्जिफून फिल मदीनति लनुरियन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला। जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त मदीना मुनव्वरा में जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन था, कुरैश के हमले का हमेशा अंदेशा रहता था और कुछ मुनाफिक जो मुसलमानों के पास भी आते थे और कुरैश मक्का के पास भी जाते थे और अफवाहें उड़ाया करते थे। तो जंग जैसे माहौल में जहां हमले का हमेशा अंदेशा हो, अफवाहें फैलाने वाले जासूस कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा आप भी बखूबी लगा सकते हैं। और हकीकत यही है कि इन जैसे लोगों को, अमन और अमान की धज्जियां उड़ाने वालों को और अफवाहें फैलाने वालों को यही सजा मुनासिब है, ये जायज है। लिहाजा इस आयत को झगड़ा कराने वाले आयत कहना ये आपकी बदकिस्मती है। ये आपकी दूसरी आयत के एतराज का जवाब हुआ। तीसरी आयत जिस पर आपने एतराज दिखाया है वो है
या अय्युहा नबी युजाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबि'सल मसीर। कि ए नबी, कुफ्फार और मुनाफिकीन से जिहाद कीजिए और उन पर सख्ती कीजिए, उनका ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। मेरे नबी ने आपके सामने ये बात पेश की है पिछली आयत में कि कुफ्फार कुरैश जालिम और जाबिर थे और मुनाफिकीन मुसलमानों के हमदर्द बनकर आते और उनकी जासूसी करते थे। फिर जासूसी कर कर वो तमाम की तमाम खबरें, वो सारी की सारी खबरें कुरैश मक्का के पास ले जाते और उनको पहुंचाते। फिर आपस में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिज़ा करते और मजाक उड़ाते थे। तो ऐसे नए मजहबी लोगों के खिलाफ लड़ना, गलत काम को खत्म करके मजहब को कायम करना है। ऐसे ही जालिम और जाबिर लोगों को और ऐसे ही फसादियों को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अते चेत त्वामिं धर्मे संग्राम न करिष्यसि तते सौधम कीर्ति चहित्वा मापम वापसेसि। हे कृष्ण, अगर इस मजहब पर मुश्तमिल जंग तू नहीं करेगा तो तू अपने मजहब और अपनी शोहरत को छोड़कर गुनाह को पाएगा। और आगे कहा है, गीता ही श्लोक है, तस्मात् तोमदिष्ट यशोरवस्य जित्वा शत्रून् भ्रष्टराज्यं समर्थ। लिहाजा उठ और दुश्मनों पर जीत हासिल कर और खुशी खुशी हुकूमत से लुत्फानंदोज हो। तो क्या आप श्री भगवत गीता के इस हुक्म को लड़ाई झगड़ा करने वाला और प्रसाद फैलाने वाला कहेंगे? अगर नहीं तो फिर अपने हिफाजत के लिए और मजहब की हिफाजत के लिए जालिमों के खिलाफ जिहाद का फरमान देने वाली आयत को आप झगड़ा कराने वाली आयत कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या जालिमाना पॉलिसी नहीं है आपकी? और इसके जरिए आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? ये आपकी तीसरी आयत का जवाब हो गया। अब आपने चौथी आयत जिस पर एतराज जताया है, मौलवी साहब, आप ये क्या एतराज की रट लगाए हुए हैं? जब से देख रहे हैं आप एतराज बिल्कुल एतराज नहीं, एतराज मैं कह रहा हूं ना, हकीकत पसंदी से इन्होंने भेज दिया। आयतों में पीड़ित पे जवाब दे रहे हैं और तरीका कर रहे हैं। आप लोग ने ये बात जवाब दी बना रहे हैं, बना कर रहे हैं। ये धर्मा साहब को किया है। अभी आपके सामने आ जाएगा एतराज है, दलील है। मैं भी आगे की बात पेश कर रहा हूं, उससे आप खुद समझ जाएंगे। जी, आपने जो एतराज जताया है चौथी आयत पर, वो आयत है, या अय्युहन नबी तुहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फन मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। कि ए नबी, मोमिनों को जिहाद पर उभारिए और तुम में से 20 अगर इकट्ठा हो जाए और जमा हो जाए तो वो उनमें से 200 पर भारी होंगे, और अगर तुम में से जो 100 जमा हो जाए तो वो उन 100 का तो उन्हें 1000 काफिरों पर भारी पड़ जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो ना समझ पाओगे। तो दरअसल आपने इसके बैकग्राउंड और इसके पसे मंजर को नहीं देखा और इस आयत के मकसद को नहीं देखा कि क्यों नाज़िल हुई। आपने सिर्फ इसका एक टुकड़ा पेश किया है। सुनिए, ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार कुरैश के दरमियान जो जंग होती, वो जंग ऐसी होती थी कि कुफ्फार कुरैश की जो तादाद होती थी वो ज्यादा होती थी। लिहाजा मुसलमानों का हौसला बढ़ाने और उनको जंग में जमाए रखने के लिए ये आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाई। और ये जंग जालिमीन के खिलाफ थी और मुशरिकीन के खिलाफ थी के जो फसादी थे और जो लड़ाई में मुसलमानों को मजबूर करते थे, न कि तमाम गैर मुस्लिमों और तमाम काफिरों के खिलाफ, तमाम मुशरिकों के खिलाफ। लिहाजा ये आयत दीगर मज़ाहिब के साथ लड़ने भिड़ने और उनके साथ जिहाद करने का हुक्म नहीं देती, बल्कि उन्हीं के साथ लड़ने भिड़ने का हुक्म देती है और जिहाद करने का हुक्म देती है फिर जो मुसलमानों को जंग पर मजबूर करते हैं। और इसकी दलील में मैं आपके सामने एक आयत पेश करता हूँ। सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 1 है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। कि अल्लाह ताला तुम्हें रवादारी करने से और भलाई का मामला करने से और अच्छाई का मामला करने से मना नहीं करता उन मुशरिकों के खिलाफ, उन काफिरों के खिलाफ कि जो तुम्हारे दीन में आग नहीं बनते और जो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करते और जो तुम्हें
بات ہے. تو آیت صاف بتاتی ہے کہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ترغیب ان کے ساتھ نہیں دی جو تمام مسلمانوں اور تمام مشرکوں کے ساتھ نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ کرنے پر مجبور کیا ہے. کیا آپ کو تمام اعتراضات کا جواب مل گیا؟ مل گیا؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں. یہاں تک تو آپ نے اتر دے دیے. میں بھی آپ کے سامنے آپ ہی کی پوری کتاب کی کچھ آیات رکھتا ہوں، آپ ان کا بھی جواب دیجیے. دوسرا دیکھیے اس آیت میں دیکھیے کہ کیسے کیسے لالچ دے کر ایک نون مسلم کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 20 ہے وَعَلَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم لوگ ہیں. ارتھ یہ ہے کہ لالچ کی بنیاد پر ایک مسلمان جو سیدھا سچا منشیہ ہے وہ آتنکوادی بن جاتا ہے. اسی طرح اس آیت کو بھی دیکھیں جناب، اس میں جہاد اور آتنک پر کس طرح تیار کیا جا رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. کہ اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو اسی وقت خرید لیا کہ ان کے لیے جنت ہے، بس وہ جنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت ہے جس کا نمبر 29 ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اس میں کھلا کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو کیا ہے مولانا صاحب یہ آیت ہے آتش دہشت گردی اور ہندوؤں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتی تو کیا ہے؟ اسی تلوار کے طور پر آپ نے اسلام پھیلایا ہے. جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، کافروں کو قتل کرو. جنتا کی عدالت میں ہم اسلام کے مہان پروشوں سے ان عدالت کا جواب چاہتے ہیں. جی جواب دیجیے مولانا صاحب، آپ جواب دیجیے. آپ بہت دیر سے پریشان نظر آ رہے ہیں، جواب دیجیے. جی جناب، آپ غصہ اور پیشے مت آئیے. غصے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بات بگڑ جاتی ہے. تسلی سے میری بات سنیے. مجھے معلوم ہے کہ یہ چند آیات ہیں جن پر آپ نے دلیل بنا رکھا ہے اور جن سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. سنیے سر، میں آپ کو ان آیات کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن تعصب کی عینک لگا کر، حقیقت کی تلاش میں نہیں. اگر آپ حقیقت جاننے کے لیے قرآن پڑھتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے. یہ آیات ہیں اور بالکل صحیح ہیں اور بالکل صحیح ہے. ان میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ نے جواب دیجیے. آپ نے ان کو صحیح سمجھا نہیں ہے. میں آپ کو ان کی تفسیر اور ان کا صحیح مطلب سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ آیات آتنک اور جہاد کا حکم دیتی ہے یا نہیں اور حقیقی معاملہ کیا ہے. پہلی آیت جس سے آپ نے استدلال کیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام تلوار کے طور پر پھیلا ہے. سنیے اس کا مطلب بھی سنیے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تمہارے ہاتھ آئیں گی. پہلے بتا دوں کہ یہاں غنیمت کا مطلب لوٹ نہیں، لوٹ مار نہیں، بلکہ دشمن سے قبضہ کی گئی جائیداد ہوتا ہے. ان حالات میں مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کے لیے حملے ہوتے یا حملے کی تیاری ہوتی رہی. کفار اور ان کے حمایتی یہود و نصارہ مال سے طاقتور تھے. ایسے طاقتور دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ان کے خلاف مسلمانوں کا حوصلہ بڑھائے رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہوا اور یہ جنگ کے قوانین کے مطابق بھی جائز ہے. آج دشمن کی قبضہ کی گئی جائیداد جیتنے والے کی ہوتی ہے. لہذا اس آیت کو جھگڑا فساد کرانے والی آیت کہنا بالکل غلط ہے. دوسری آیت جس سے آپ نے استدلال کیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ مارتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. گیتا کے اندر ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارجن یا تو جنگ میں مر کر جنت حاصل کر یا جیت کر زمین پر حکومت کر. اس لیے ارجن تو جنگ کے لحاظ میں مسلمان کر کے کھڑا ہو جا. کیا گیتا کا یہ پیغام لڑائی جھگڑا کرانے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ ظلم کو بڑھانے والا ہے،
बल्कि ये पैगाम को जालिम व जाबिर लोगों को तबाह करके मजहब को कायम करने के लिए की जाने वाली जंग है। इन हालात में मुसलमान कुफार मुशरिकीन को उनको खतरा था और वो कुफार मुशरिकीन को खत्म करने के लिए ठीक यही फरमान अल्लाह के तबारक व तआला की तरफ से दीन इस्लाम की बका के लिए है, खुद की हिफाजत के लिए है। फिर इसे ही झगड़ा कराने वाले आयत क्यों कहा गया? क्या ऐसा कहने वाले गैर मुंसिफाना रवैया नहीं रखते? ऐसे लोगों से आवाम को मुहतात हो जाना चाहिए। तीसरी आयत जिससे आपने इस्तिदलाल किया है, वादिरुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, इसका तर्जुमा ये है, अहले किताब में से उन लोगों से जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना क़यामत के दिन पर और ना वो सच्चे दीन को अपनाते हैं, उनसे लड़िए यहाँ तक कि वो ज़लील और रुस्वा होकर जिज़्या देने लगे। इस्लाम के मुताबिक तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद आसमानी किताबें हैं, अल्लाह की नाज़िल करदा किताबें हैं। इसलिए इन किताबों पर ईमान लाने वाले यहूदी, ईसाई और मुसलमान अहले किताब कहलाए। यहाँ अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा हैं। आसमानी किताबें पुरस्कार होती हैं। इसलिए इन आयतों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इन आयत के अंदर यहूद और नसारा को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए लगाई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में किसी तरह की जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर मना करते हैं कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। इरशाद बारी ताला है, फइन हाजूक फकुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबा। तर्जुमा सुन लीजिए, अगर वो आपसे झगड़ने लगे तो आप कह दीजिए कि मैंने अपने आप को और अपने पैरोकारों को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और आप अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि आप इस्लाम लाए, अगर वो इस्लाम लाए तो उनकी वो राह हिदायत पाए, अगर वो इनकार कर दे तो आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। इसी तरह एक दूसरी आयत के अंदर सुन लीजिए, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम